Let me also introduce my fellow panelists. Dr. Ashwini Maichand, Director for Orthopedics Department at CK Birla Hospital, and Amit, he is the Unit Head for CK Birla Hospital, Punjabi Bags. To come here on this auspicious day for us, it's a very, very important. Dr. Maichand speak more about the robot and the benefits of it. One of the India's most advanced robot from orthopedics perspective, and we as a hospital have done something very interesting, which is minimally invasive surgeries with an active orthopedic robot. So Dr. Maichand will cover about this aspect a little bit more. I will just take 1 quick minute to talk about CK Birla Hospital Group. We have 5 hospitals in the group. The first hospital we started over 50 years back, which was in Calcutta by the name CMRI. And right now in Delhi NCR we have 2 hospitals. One is this in Punjabi Bagh, and one hospital 5-year-old we have in Gurgaon. We also plan to open another 4 to 5 more hospitals in Delhi NCR, and as a group we will focus a lot on patient experience and high quality of clinical care. That is our focus from a hospital perspective. I'll ask Amit to speak about the hospital a little bit more. I think Vipul has captured everything, and before we request Dr. Maichand to throw more light on this technology, I would like to quickly tell you about this unit. So this unit, this is a 90-minute unit, and we are doing all kind of high-end surgeries here. And we have programs in orthopedics, we have programs in GI surgeries, we have programs in oncology. And our only focus is we want to enhance these programs, not just with technology, but with the right kind of skilled manpower also. Dr. Maichand is leading this program for orthopedics here, and under his leadership we are introducing this robot for this here. India में I think 2.5 lakhs TKRs होते हैं, and total knee replacement is a complex surgery अभी भी, but over a period of time I think the doctors के skills इतने बढ़ गए हैं कि वो surgery का output अच्छा perform होने लगा था, but फिर भी उसमें ना देखा जाता था कि revision की ज़रूरत पड़ती थी, and Dr. Maichand इस पे ज़्यादा बात करेंगे. I think उस जो gaps थे उसको fulfill करने के लिए I think technology अभी आ गई है. So over to Dr. Maichand. And I thank my hospital, CK Birla Hospital, for giving me the responsibility of leading the robotic program. दोस्तों, जैसे आपका एक जॉब है, एक ड्यूटी है टुवर्ड्स द पब्लिक, कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसी तरह पब्लिक के लिए हमारी भी एक जिम्मेवारी है कि हेल्थ केयर में हम उनको बेस्ट कैसे दे सकते हैं. हमारा जो आपने इस तरह की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस पहले भी अटेंड की होगी, हर हॉस्पिटल बताता है हमारे पास बेस्ट मशीन है, हमारे पास ये है वो है, बहुत सारी बातें. बट एक्चुअली क्या है कि ट्रीटमेंट की फ़िलॉसफी क्या है. हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो इलाज करते हैं, हमारे पास पेशेंट तकलीफ में आता है, हमारी फ़िलॉसफी क्या है काम करने की. हम पेशेंट को बेस्ट कैसे दे सकते हैं. एक सर्जन और एक जो हेल्थ केयर टीम है वो हमेशा यही सोचती रहती है कि इससे बेस्ट कैसे करें. नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, not in terms of number of patients, but in terms of comfort to the patient. जैसे अमित ने बताया अभी कि नी रिप्लेसमेंट 2.5 लाख सर्जरीज होती हैं हर साल इंडिया में, लेकिन इससे भी ज़्यादा नंबर्स ऐसे पेशेंट्स का है जो सर्जरी नहीं कराना चाहते या सर्जरी नहीं करा पा रहे. हमें उस एंगल से सोचना है कि हमारे यहाँ बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़. अगर बहुत सारे लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, आप उनसे पूछ के देखिए, सर्जरी की अपॉइंटमेंट्स मिलते मिलते 2-2 साल लग जाते हैं. हमारे यहाँ डॉक्टर्स आर अवेलेबल एट योर प्रैक्टिकली एट योर डोरस्टेप. आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई आपको इलाज कराना है, बहुत ही कम रेट्स में हमारी इंडिया में अवेलेबल हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी मैक्सिमम डॉक्टर्स, जो मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो इंडिया के ही हैं. तो हमारे यहाँ मेडिकल एक्सपर्टाइज की कमी नहीं है. कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की कि क्या हम एम्पैथी से काम कर रहे हैं, क्या हम पेशेंट की तकलीफ को समझ रहे हैं. नी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं कराता पेशेंट? सबसे पहला डर उसका होता है कि सर्जरी के बाद दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत लंबी फिजियोथेरेपी चलती है, पेशेंट फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, पेशेंट को इन्फेक्शन का डर है,
और पेशेंट को ये लगता है कि कहीं मैं पहले से भी खराब ना हो जाए। बड़ी कॉमन सी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो हम डेली ओपीडीज में देखते हैं, सुनते हैं और इन चीज़ों को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को हमने दो तरीके से काउंटर किया है। पेशेंट का दर्द कैसे कम करें, तो हमने कई सालों से एक टेक्निक डिवाइस की थी नी और हिप रिप्लेसमेंट के लिए, जिसको हम कहते हैं MIS टेक्निक, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। इस सर्जरी में हम किसी भी मसल या टिश्यू को डैमेज नहीं करते हैं, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है। और ये टेक्निक इतनी पॉपुलर और इतनी लोगों में इतनी उनको अच्छी लगी है चीज़, बहुत सारे लोग हमारे पास सिर्फ MIS टेक्निक के लिए आते रहे। अगली चीज़, अब क्या होता है कि नी एक, अगर मैं एक मॉडल आपको दिखाऊं जरा, नी जॉइंट ये ऐसा है, आप सब जानते हैं, ऊपर एक बोन है, इसको फीमर कहते हैं, एंड दिस बोन इज टिबिया। हम कोई भी जब रिप्लेस करते हैं जॉइंट को, तो मूवमेंट कहाँ होती है, देयर इज अ गैप बिटवीन द बोन्स। तो सर्जरी में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दैट इज गैप बैलेंसिंग। थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको गैप बैलेंसिंग कहते हैं। अगर ये गैप हम दोनों तरफ इक्वल मेंटेन कर लेते हैं एट ऑल रेंज ऑफ मूवमेंट, क्योंकि हिप की नी की मूवमेंट बहुत सारी होती हैं, एट ऑल मूवमेंट्स एट ऑल एंगल्स दिस गैप शुड बी बैलेंस्ड। और ये बैलेंसिंग अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ अपनी आई बॉलिंग जिसको कहते हैं, या अपनी जजमेंट से कर रहे थे। वो कभी कम भी हो जाता था, कभी ज़्यादा, क्योंकि आप ही समझते हैं कि ह्यूमन आई 1 मिलीमीटर या 1 डिग्री ऑफ एंगल को अप्रिशिएट नहीं कर सकती। कुछ भी कहिए आप, 1 डिग्री और 1 mm ह्यूमन आई से डिटेक्टेबल नहीं है। और नी की परफॉर्मेंस में 1-1 मिलीमीटर और 1-1 डिग्री का सिग्निफिकेंस है, उसको हमने काउंटर किया है बाय रोबोटिक टेक्निक। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इधर अगर आप देखेंगे जो मशीन है, इस तरफ आप देख रहे हैं कंसोल जो है, सर्जरी से पहले हम एक 3D CT करते हैं पेशेंट के नी का, पेशेंट की पूरा किस साइज का नी है, किस तरह का शेप, क्योंकि नी की शेप अलग अलग रहती है, बोन की शेप सबकी अलग रहती है, हम इसमें फीड करते हैं थ्रू ए 3D CT स्कैन डाटा। हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें सर्जरी से पहले ही बता देता है कि अगर आप इम्प्लांट को इस पर्टिकुलर एंगल पर डालोगे, इस पर्टिकुलर साइज का इम्प्लांट रखोगे, तो पेशेंट की परफॉर्मेंस ऐसी आएगी। दिस थिंग वाज अनथिंकेबल बिफोर दिस मशीन केम इन। दैट इज वन पार्ट, दैट इज प्री प्लानिंग। उसके बाद हम सर्जरी की बात करें, आपने मूवमेंट्स देखे हैं रॉबोट की, इसकी ऑलमोस्ट आप देखें वो मूवमेंट्स हैं जो ह्यूमन हैंड से हो ही नहीं सकती। इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसके लिए कि उस जो कंप्यूटर हमें बता रहा है, जो हमारा सॉफ्टवेयर हमें गाइड कर रहा है कि इस एंगल पर डालना चाहिए फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। रिवीजन की बात अभी अमित जी ने की है। रिवीजन यानी कि बार बार ऑपरेशन होना। एल्डरली आदमी 70 साल का आदमी है, अगर आप उसको 10 साल बाद फिर सर्जरी होगी, 10 साल बाद फिर सर्जरी होगी, इट्स पैथेटिक। फैमिली भी थक जाती है, फाइनेंशियली इमोशनली दे आर ड्रेन, दे आर नॉट रेडी फॉर 2-3 सर्जरीज। एक सर्जरी कराना भी मुश्किल है, इट्स ए फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली। तो हम रिवीजन रेट कैसे कम कर रहे हैं, हम इस मशीन से गैप बैलेंसिंग कर रहे हैं। इम्प्लांट का एंगल, इंक्लिनेशन सब कुछ प्री कैलकुलेट करके चलते हैं। लेकिन अगर मैं हाथ से काम कर रहा हूं तो वो एंगल और इंक्लिनेशन चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द सर्जरी, एंड माय पेशेंट मे नॉट बी एबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो उसके लिए हमें इस रोबोटिक आर्म की जरूरत होती है। तो ये 2 पार्ट है मशीन के। सो रोबोटिक आर्म को हम जो डिक्टेट करते हैं, ये एग्जैक्टली वही कट और वही एंगल मेरे को देती है जो मैं हाथ से नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे, आप वो सवाल पूछें सो दैट ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि मशीन है ये बहुत अच्छी है, नहीं, वाई वी वांट टू यूज दिस मशीन, व्हाट इज द बेनिफिट, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। तो मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आपकी तरफ से आएँ तो हम इसके बारे में और डिस्कस करें। सर ये जो आपके फर्स्ट टाइम ही हो रहा है या वन इज फुली एक्टिव रोबोट। सेमी एक्टिव में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, लेकिन जो ब्लेड आप देख रहे हैं मशीन का सबसे आगे, ये जो टिप है, देखो, टू कंप्लीट एनी रिप्लेसमेंट, पूरी सारे मैनूवर जो इसके हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इसमें कहीं भी ह्यूमन हैंड नहीं है। तो इसमें फर्स्ट क्या है इंडिया में कि जब भी रोबोटिक सर्जरी करते हैं, टू अलाउ द रोबोट टू वर्क, लोगों को अभी भी ओपन यानी कि ट्रेडिशनल टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर कंबाइनिंग द रोबोटिक टेक्निक विद MIS टेक्निक, यानी कि हम पेशेंट को टेक्निक का भी फायदा दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी फायदा दे रहे हैं। तो दिस कॉम्बिनेशन इज यूनिक एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये कॉम्बिनेशन हम पहली बार लेके आ रहे हैं। प्लीज नेक्स्ट, मैक्सिमम बेनिफिट टू द पेशेंट विदाउट पुटिंग टू मच बर्डन ऑन फाइनेंशियल। तो अभी इसके बारे में, खर्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, हम पेशेंट को पहले बेनिफिट दे रहे हैं,
let them have the benefits, we'll think about it later. ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, these are secondary issues. First thing is my patient should get the best. We started just a month ago और अभी हम around 20 surgeries कर चुके हैं. अभी हमारी पाइपलाइन में है, बाहर कंट्री से लोग आ रहे हैं अब तो हमारे पास. अभी रात हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे, उज़्बेकिस्तान से एक पेशेंट हमारे पास करा के गए हैं. बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन इज यूनिक, दिस इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर. रोबोटिक का छोड़ो, विद MIS टेक्निक इट्स नॉट अवेलेबल एंड वी आर प्राउड टू से दैट वी आर नाउ सर्विंग मोर एंड मोर पेशेंट्स विद दिस टेक्निक. टेक्निक से मिनिमम ट्रॉमा कर रहे हैं टिश्यूज का. और रोबोटिक आर्म का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये टिश्यू की ये जॉइंट की डेप्थ में जाता है विदाउट डिसेक्टिंग द टिश्यू. हमें डिसेक्शन कम करना पड़ रहा है, वी आर डैमेजिंग लेस नंबर ऑफ वेन्स, तो उससे स्वेलिंग भी कम होता है. बट इसके साथ उसमें डेफिनेटली अभी इंप्रूवमेंट होगी. कितना होगा, 5 years होगा कि 10 years होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू. फिलॉसफी पे काम करते हैं हम सब लोग कि हम एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं. कितना एडवांटेज मिलेगा, 20% मिलेगा, 30% मिलेगा या 50% मिलेगा, बट फायदा होगा. एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना विल बी डिफिकल्ट. चलते रहते थे, सालों चलते रहते थे. ऐसा नहीं है कि नी पेन के साथ लोग अपनी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते, लेकिन दर्द के साथ करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत लिमिट हो जाती है, राइट. बट अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना ही होता है, राइट. सो शायद एक इनिशियली लाइफ सेविंग चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होता था, बट आजकल पीपल ऑल्सो वांट कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, राइट. सो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, आई वुड से नी रिप्लेसमेंट्स जो 2.5 लाख अमित कह रहे हैं, 5 साल पहले ये नंबर हाफ भी नहीं था उसका, राइट. इतना डिफरेंस हो गया है इन पीपल्स एक्सपेक्टेशन कि उन्हें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हेंस एक अच्छे क्वालिटी ऑफ आउटकम्स चाहिए. कि कोई भी नहीं चाहता मेरी सर्जरी हो और मुझे बहुत पेन हो, या मेरे को आज मैंने सर्जरी कराई 10 साल में दोबारा से मुझे सर्जरी करानी पड़े, राइट. दीज आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ थिंग्स जिसके लिए मुझे लगता है अब इंडिया में लोग अवेयर हो रहे हैं और वो डिमांड करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ आउटकम, राइट. एक्चुअली सही पूछ लिया कि कितना गहरा कट होगा. इट्स नॉट अबाउट लंबा कट, इट्स अबाउट गहरा कट. जब हम हाथ से सर्जरी करते हैं तो मुझे पूरी बोन को एक्सपोज करना पड़ता है, पूरा मुझे यहाँ तक एक्सपोज करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को हाथ से ही सॉ को चलाना पड़ता है जो मेरी मशीन होती है. बट रोबोट में ये आप मूवमेंट्स आप देखते कि हर एंगल से एक ही पॉइंट से चला जाता है, तो मुझे स्ट्रिप करने की जरूरत नहीं है मसल्स को, मुझे सॉफ्ट टिश्यू को स्ट्रिप करने की जरूरत नहीं है. उससे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं. ये तीनों चीज़ें इस आप बहुत अच्छा सवाल पूछे, गहरा कितना है कट, लंबा कट सब पूछते हैं. पहले सर्जरी होने से पहले ही हमें रिजल्ट पता लग रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है. 3D CT स्कैन में हमें ये पिक्चर मिलती है और ये जितने एंगल्स आप देख रहे हैं, एवरी एंगल चेंजेस विद 1 अल्ट्रेशन ऑफ 1 मिलीमीटर एंड 1 डिग्री. तो मुझे इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल रही है कि जब हम ये एक एंगल चेंज करेंगे तो मेरा कितना परफॉर्मेंस अच्छा आएगा. और ये सर्जरी से एक दिन पहले ही कर लेते हैं. एक तरह से ये हमने एक इसका डमी ट्रायल पहले ही कर लिया है कि पेशेंट का अगर ये इम्प्लांट डालेंगे, इस एंगल पर डालेंगे, कितनी डेप्थ पर डालेंगे तो पेशेंट को कितना रिजल्ट मिलना है. तो इससे मेरा इम्प्लांट की लॉन्गेविटी कितनी होगी, उसकी लाइफ कितनी बढ़ जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस. देखिए नी में भी बैलेंसिंग है. आप गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं, व्हील बैलेंसिंग होती है, हमें नहीं पता होता कि हमारा व्हील आउट ऑफ बैलेंस है, लेकिन वो जो कंप्यूटर पर उसको लगाते हैं तो पहचान जाते हैं. क्यों करते हैं वो, ताकि आपके टायर का वेयर एंड टियर कम हो. सेम थिंग अप्लाइज हियर, सभी जगह फिजिक्स ही है. अगर एक मूविंग पार्ट में बैलेंसिंग अच्छा रहेगा तो उसका वेयर एंड टियर कम हो जाएगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी. तो ये आप देखिए, हम हर एंगल से इसको देख सकते हैं. मेरा इम्प्लांट कैसा लगेगा ड्यूरिंग सर्जरी, मुझे कोई चेंज करना है तो मैं अभी भी कर सकता हूँ और ड्यूरिंग सर्जरी भी कर सकता हूँ. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, ये सॉफ्टवेयर जो इन्होंने बनाया है. सिमिलरली इन कमिंग मंथ्स वी आर कमिंग विद रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जरी ऑल्सो. तो दिस विल बी प्रैक्टिकली ए ऑर्थो रोबोटिक डिपार्टमेंट जिसमें हम मैक्सिमम काम AI के साथ और रोबोट के साथ करेंगे. हर एंगल से आप देख सकते हैं. मैं नाम बताएं. आई एम डॉक्टर अश्विनी माइचंद, आई एम डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एट CK बिरला हॉस्पिटल. इंडिया में पहली बार हम एक ऐसा नी रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ MIS टेक्निक को कंबाइन कर रहे हैं, ताकि हमारे पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिले, उनकी रिकवरी फास्ट हो और जो इम्प्लांट की लाइफ है वो बढ़ सके. MIS टेक्निक क्या है? MIS टेक्निक मीन्स कि हम जॉइंट के आसपास के जो टिश्यूज़ हैं, वेदर इट्स मसल्स, लिगामेंट्स एंड कैप्सूल्स, उनको डैमेज नहीं करते. उससे
पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं होती है, ज़्यादा डिसेक्शन नहीं करना पड़ता है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली पेन नहीं होता है और उनकी रिकवरी फास्ट होती है। सर आम आदमी अगर इसका ट्रीटमेंट कराना चाहे, ये रिप्लेसमेंट की बात की है, ये जब हम एक्सपोज करते हैं जॉइंट को, दैट इज MIS टेक्निक। उसके बाद जो काम है वो रोबोटिक काम है, जो बोन कट्स लगाते हैं वो रोबोटिक है। सर आम आदमी अगर घुटने को रिप्लेस कराना चाहे तो उसका एक्सपेंसेस क्या होगा और वो कैसे बियर कर सकता है, कैसे आप तक पहुँचे? सर उस चीज़ को डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या कॉमोर्बिडिटीज़ हैं, यानी कि उनको कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और क्या क्या डिजीज़ हैं, और उनका घुटना कितना ख़राब है, हमें कितना काम करना है, हाफ नी रिप्लेसमेंट करना है या कंप्लीट करना है, तो इट्स वेरिएबल। मिनिमम और मैक्सिमम खर्चा कितना आएगा सर? क्योंकि मेन जो आदमी होता है वो डरता है खर्चे से। जनरली 2 लाख से 5 लाख के बीच में रेंज रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना काम है उसमें, कितने उसमें क्या इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, किस टेक्निक से हो रहा है सारा। सर अभी तक रोबोट से आपने कितने सर्जरी? वी हैव ऑलरेडी डन अराउंड 20 सर्जरीज, और आगे आने वाले टाइम में जब आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक आई थिंक विल बी क्रॉसिंग हंड्रेड्स। सर जो 20 उनमें से किसी की कोई शिकायत आई है, किसी को कुछ परेशानी की या कुछ? नहीं, नथिंग, दे आर ऑल डूइंग वेल बाय गॉड्स ग्रेस। एज ग्रुप क्या होगा सर ज़्यादा? सर जनरली 60 to 80 के बीच में रहते हैं, जनरली जो नी रिप्लेसमेंट की एज है एवरेज यही है। हालांकि कई बार 50 से नीचे के भी पेशेंट होते हैं, समटाइम्स यू गेट पेशेंट फॉर 90+। सर आपके नज़रिए से ये जो घुटने की प्रॉब्लम है ये किस एज में शुरू होती है लोगों को, और किस एज में उसको क्या केयर करना चाहिए? जनरली 50+ में होती है, लेकिन हम उसकी तैयारी पहले से कर सकते हैं कि हमें लेट हो या ना हो। उसके लिए आपको अपनी बोन क्वालिटी अच्छा रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल ठीक रखने चाहिए, और एक ओवरऑल हेल्थ यानी कि आपका वेट ज़्यादा ना बढ़े, आप एक्टिव रहें, आपको बाकी डिजीज का प्रॉपर, ताकि जितनी आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी उतने आपको जॉइंट हेल्दी रहेंगे।